પહેલા સત્રમાં આપણે એ જોયું કે અસ્તિત્વમાં કેટલી અવસ્થાઓ છે અને એ બધી અવસ્થાઓ કેવી રીતે પ્રગટ થઈ અને કેવી રીતે બેલેન્સ છે એકબીજાને, બરાબર. સો પહેલી પદાર્થ અવસ્થા, સેકન્ડ પ્રાણાવસ્થા, થર્ડ જીવાવસ્થા અને જ્ઞાનાવસ્થા, બરાબર. તો પદાર્થ અવસ્થામાં જેટલું પણ મિટ્ટી, માણી, ધાતુ, પથ્થર જે રીતે દીદીએ કીધું એ રીતે એ બધું ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ હતું, બરાબર. જ્યારે એ પોતાનામાં સંપન્ન સમૃદ્ધ થયું ત્યારે પછી પ્રાણાવસ્થા પ્રગટ થઈ, બરાબર. પ્રાણાવસ્થા મતલબ બધા પ્લાન્ટ્સ, ટ્રીઝ એ બધું. તો પ્રાણાવસ્થા એ પદાર્થ અવસ્થાને સમૃદ્ધ કરે છે અને જે નેક્સ્ટ જીવાવસ્થા છે એમાં એ પોતાને હેલ્પફુલ થશે, મતલબ પૂરક થશે, બરાબર. એના પછી જ્યારે બધા પ્લાન્ટ્સ અને એ બધું જ્યારે સમૃદ્ધ થયું ત્યારે નેક્સ્ટ જીવાવસ્થા પ્રગટ થઈ, બરાબર. મતલબ જે પણ અવસ્થા છે એ પોતાનામાં જ્યારે સમૃદ્ધ થાય છે ત્યારે એ એવી રીતે સહજ બધું બેલેન્સ કરે છે તો નેક્સ્ટ અવસ્થા પ્રગટ થાય છે, બરાબર. તો પછી જીવાવસ્થા, એનામાં પશુ, પક્ષી અને એ બધું. તો જીવાવસ્થા પોતાનામાં સમૃદ્ધ છે. તો એ જેમ કે કોઈ પણ એનિમલ્સ હોય, બરાબર, એ એમના મળમૂત્ર વગેરેથી પદાર્થ અવસ્થામાં પોતાનું યોગદાન આપે અને એ રીતે પ્રાણાવસ્થાને એ ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે, બરાબર. તો ત્રણેય અવસ્થા એકબીજાનામાં ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે, પોતે સમૃદ્ધ છે અને બીજાને હેલ્પફુલ છે, બરાબર. પછી જ્ઞાનાવસ્થા. તો જ્ઞાનાવસ્થામાં માનવ ઇન્ક્લુડ થાય છે. તો જ્ઞાનાવસ્થામાં માનવ પાસે કલ્પનાશીલતા છે, બરાબર. તો એનાથી માનવ જિજ્ઞાસાપૂર્વક બધું શોધે છે અને કરે છે. સો જ્યારે બધી જ અવસ્થાઓ એકબીજાને બેલેન્સ થઈને ચાલે છે તો પ્રકૃતિ બરાબર છે. જાણે અજાણે જ્યારે માનવ પોતાની જિજ્ઞાસાના કારણે કે પોતાના નીડીનેસના કારણે પોતાની જરૂરોને મિસઅન્ડરસ્ટુડ કરે છે તો એના ચક્કરમાં ઇમ્બેલેન્સ થાય છે. સો અલ્ટિમેટલી મનુષ્ય પોતાને ખુશી કે શું કહેવાય, હેપીનેસ શોધવા માટે આપણે જે ભાગદોડ કરીએ છીએ, એકચ્યુઅલી આપણે સમજણ વગર જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે બધું ઇમ્બેલેન્સ થાય છે. સો બધું ડિસ્ટર્બન્સ ત્યાં છે. જ્યારે આપણે બધું સમજી જશું પ્રોપર, બરાબર, કે એકચ્યુઅલી મને જેમ કે દીદીએ વાત કરી એમ કે કોલસાનો આપણને પેટ્રોલિયમ કોલસાનો આપણને ઉપયોગ છે, પણ એનો ઉપયોગ એને બચાવી રાખશું તો એ તાપમાન બેલેન્સ કરવામાં પણ છે. સો એ એકચ્યુઅલી એને કઈ રીતે આપણના ઉપયોગમાં લેવું એ પ્રોપર સમજાશે તો મનુષ્ય બધું બેલેન્સ કરીને ચાલશે તો પ્રોપર સમાધાન મળશે. સો અત્યાર સુધી આપણે 4 અવસ્થાઓ એ કેવી રીતે એકબીજાથી પ્રગટ થઈ અને એકબીજાને પૂરક છે, એકબીજાને સમૃદ્ધ બનાવે છે, એ બધું આપણે જોયું. હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં શાલિની દી આપ आगे समझाए. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अच्छा बताया ना दिग्ना बहन ने सॉरी अद्भुत, इतनी बात. हाँ जी, रिवीजन हुआ. और कुछ कोई रखना चाहेगा? अरे अब अपने वो बच्चे कहाँ हैं, देवांशी और दीप्ति और रंजीता बहन और वो, हाँ उनको बुला दिया जाए. पता लिया कहाँ पर है वो? नहीं पता है? ठीक है, कोई बात नहीं. आपको पता है? हाँ आप, हाँ आइए. इसको ऐसे करके लगा लीजिए. हाँ. लीजिए, इसको लगा लीजिए. जैसे ये शालिनी दीदी ने समझाया तो ये सब तो समझ गए हम लोग. लेकिन एक दूसरा आपके सामने प्रश्न रखना चाहता हूँ मैं कि सबसे पहले ये प्राणावस्था आई, उससे पहले धरती आग का गोला थी, ठंडी हुई. हम लोग कोई ठंडी करने गए नहीं थे, लेकिन हम एक तपेली दूध गर्म करते हैं तो भी आधा घंटा उसको ठंडे में होने में लगता है. इसको कितना साल लगा हुआ? बहुत साल लगे होंगे.
उसके बाद प्राण, ये पदार्थ अवस्था आई, उसके बाद जो आई वो प्राणावस्था, वो भी करोड़ों साल लगे होंगे, लाखों साल लगे होंगे। उसके बाद जीवों को आने में लाखों साल लगे, और हमको आने में करीबन कितने साल लगे होंगे अबाउट? हैं? नहीं, साढ़े दीदी कुछ बताएंगी। साढ़े 4 अरब वर्ष ये सबको ज्ञात है। सिर्फ एक प्रश्न इतना ही है कि ये पदार्थ बनी, वृक्ष वनस्पति आए, पशु पक्षी आए, और अंत में हम सब लोग इस फिल्म के हीरो और हीरोइन की एंट्री होने वाली थी, है ना। तो हम लोग अपने घर में एक बच्चा जब जन्मता है, जैसे बच्चे से शुरुआत की थी शालिनी बहन ने, तो हम आशा करते हैं ये बड़ा होकर, ये बड़ी होकर के ऐसा बने, ऐसी बने, वो बने, वो बने, वो बने, हमारी सेवा करे, हमारे परिवार का नाम रोशन करे। कितनी आशा रखते हैं कि नहीं? तो हमको धरती पे आने के लिए धरती ने 4 करोड़ 4 अबज साल लगाए, तो हमको लाने के लिए लगाए, तो हम कैसे होने चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि नहीं। और तीनों अवस्थाएं जो संतुलन में है उसी में हम होने ही चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसा बताया था नेचर बच्चे का, वही नेचर हमारा होना चाहिए, लेकिन बदला है, उसी के लिए 3 दिन का ये कार्यक्रम है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। ये श्लोक बेटा जी, बढ़िया। तो शैलेंद्र भाई ने कहा कि हमको कैसा होना है, चाहिए नहीं, कैसा होना है, मतलब अस्तित्व में हमारे होने का कोई डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन का हमको अध्ययन करना है ना। मैं कुछ बातों को रखती हूँ। लिया बेटा जी, आइए। ये सब लिया बेटा जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, और उस सदस्यता में उन्होंने भागीदारी को स्वीकार किया है। तो 4 अवस्थाओं में हमने एक चीज़ देखा, 3 अवस्थाएं जो हैं, पदार्थ, प्राण, जीव, 3 अवस्थाएं आपस में ऐसे हैं, ऐसे सजे हुए हैं कि अगली अवस्था पिछली अवस्था से जितना लेती है उससे अधिक देती है। मिनरल्स लेती है और खाद देती है। खाद ही मिट्टी की उर्वरकता है, और मिट्टी की उर्वरकता के कारण ही मिट्टी की आगे उपयोगिता और बढ़िया सिद्ध होती है। ये होता है। तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं स्वयं में समाधान स्वरूप हैं। इस अस्तित्व की प्रत्येक वस्तु का होने का एक डिज़ाइन है, वो है समाधान स्वरूप। समाधान होने का मतलब है जैसा होना वैसा रहना। जो आपका डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट जो काम है उसको कर पाना, उसकी योग्यता होना उसमें। इसी को दूसरे शब्दों में कहा उपयोगिता पूरकता। उपयोगिता को कहा स्वयं में व्यवस्था। स्वयं में व्यवस्था क्या चीज़ है, अब उसको बताती हूँ। तो जैसे ये हमारा शरीर है, ये शरीर एक व्यवस्था है। इस शरीर में जो आँख है वो भी एक व्यवस्था है। आँख एक छोटी व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था में क्या करती है, भागीदारी। जानते हैं कैसे करती है? मैं चल रही हूँ, कांटा अगर मुझे चुभ जाए तो एकदम से मेरी आँख के सामने पानी आता है और एकदम से आँख झपती है और मेरा हाथ अपने आप कांटे को निकालने के लिए तुरंत पैर ऊपर उठेगा, कांटा हाथ इससे निकलेगा, और जैसे ही कांटा निकलेगा आँख से आंसू निकल करके आँख फिर से साफ हो जाएगी। इतनी सुंदर व्यवस्था है, तालियां बजाइए भाई। इसको बोल रहे हैं व्यवस्था। ये जो मानव का शरीर है ये अस्तित्व सहज एक इकाई है, व्यवस्था स्वरूप है, स्वयं में व्यवस्था। तो आँख स्वयं में एक व्यवस्था है, शरीर की व्यवस्था में एक भागीदारी करती है, शरीर के स्वास्थ्य में एक भागीदारी करती है। किडनी स्वयं में एक व्यवस्था है और शरीर की व्यवस्था में भागीदारी है। कोई बात नहीं बेटा, इतना भी बहुत है, धन्यवाद। तो हम ये समझ पाए इतनी देर में कि जो 3 अवस्थाएं हैं, पदार्थ,
थोड़ा और डार्क चलने वाला मिले कुछ। हाँ, पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान। ये क्या है? पहला अनुक्रम है। ये क्या है? अनुक्रम है। तो अस्तित्व में प्रगटन है। अस्तित्व में क्या है? प्रगटन है। प्रगटन क्या वस्तु है, इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। थोड़ा आगे देखते हैं। अस्तित्व में प्रगटन में एक अनुक्रम है। ये जो अनुक्रम है, अनुक्रम में एक अगला सिद्धांत है। अनुक्रम कैसा है? पदार्थ क्या है? स्वरूप इसका समाधान। प्राण का स्वरूप क्या है? समाधान। जैसे मैंने बताया ना, समाधान का मतलब क्या है? कौन बताएगा? समाधान बराबर उपयोगिता पूरकता। उपयोगिता पूरकता मतलब स्वयं में व्यवस्था। जैसे आँख स्वयं में एक व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। इतना तो अभी आपके दिमाग में बैठना। समग्र व्यवस्था में भागीदारी या बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। ठीक है? तो पदार्थ समाधान स्वरूप, प्राण समाधान स्वरूप, जीव अवस्था भी समाधान स्वरूप और ज्ञान अवस्था प्रश्न चिन्ह स्वरूप। यह समस्या स्वरूप। पूरी धरती का, जैसे शैलेंद्र भाई ने ध्यान दिलाया, 4.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 अरब वर्षों का जो श्रम है, धरती का श्रम है ना, और उस श्रम को हम जब उसके उल्टे की तरफ लेके जा रहे हैं ना, जिस दिशा में धरती ने गति की है उससे विपरीत दिशा में जब हम ले करके जा रहे हैं, तो उससे मानव सुखी हो जा रहा है क्या? प्रदूषण से दुखी हम स्वयं हैं। प्रदूषण से ऐसा तो नहीं है कि हम सुखी हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि क्या ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगता कि यदि पदार्थ अवस्था समाधान स्वरूप है और समाधान स्वरूप होने के साथ साथ क्या है? समृद्धि स्वरूप या फिर समृद्धिकारी है। इसी तरीके से प्राणावस्था भी समाधान समृद्धि स्वरूप, जीव अवस्था में भी समाधान समृद्धि का डिज़ाइन। तो क्या ज्ञानावस्था का लक्ष्य सिंपल एक लॉजिक समाधान स्वरूप नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं? और समृद्धि स्वरूप होना चाहिए या नहीं? ये 2 प्रश्न हैं आप सभी के सामने। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद कहता है मानव का लक्ष्य है समाधान समृद्धि स्वरूप हो जाना। मानव का लक्ष्य है व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाना, व्यवस्था की इकाई को पहचानना। अब ये क्या है, इसको हम इस सेशन में खोलेंगे। ये सभी अवस्थाएं साथ में क्या है? परस्पर पूरक भी है। ये भी इसके पूरक है, ये इसके भी पूरक है, ये इसके भी पूरक है। इस तरीके से पूरा डिज़ाइन जो है बना हुआ है। मात्र ज्ञानावस्था एक ऐसी इकाई दिखाई पड़ रही है जो कि पूरक नहीं दिखाई पड़ रही है। क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? इतनी सी बात है, उसको समझ में नहीं आया। और इतनी सी ही बात है कि समझ में आ जाएगा तो उसको सही कर लेगा। क्यों? क्योंकि समझने के बाद सही करने का डिज़ाइन है। अंदर से कुछ है कि आपको जो समझ में आया आप वही कर रहे हैं, है ना? कुछ समझ में आया, कुछ समझाया गया, इस विधि से हम लोग चल रहे हैं, उसी को शिक्षा कह रहे हैं। जो हमको समझाया गया, चाहे हमको परिवार से कुछ समझाया गया हो, हमको किसी ने समझा दिया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो हम चल पड़े। हमको किसी ने कुछ समझा दिया, हम चल पड़े हैं। ज़रा ये जो शिविर है, ये वो समय है जहाँ हमको रुक के ठहर के देखना है जो हमको समझाया वो अस्तित्व सहज था कि नहीं, है ना? तो ये अस्तित्व सहज हो, इसकी हमको जांच करनी। और जैसे मैंने कहा, इसको समझने का GPS ये आपके अंदर है। आपको पता चलेगा कि भैया ये सही था कि नहीं था। ठीक है? तो मानव, अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है? ये वाली ज़्यादातर बातें हो गई हैं। इन बातों को वापस मैं खोलूँगी, ये कैसे इस तरीके से समाधान समृद्धि स्वरूप होती हैं
और मानव में क्या समाधान और समृद्धि का स्वरूप है, इसको खोलते हैं। तो जो मानव है, यदि हम मानव को देखें तो मानव संतान आती कैसे है? मानव संतान आने के लिए 2 मानवों की आवश्यकता पड़ती है। 2 मानवों की आवश्यकता के बिना मानव संतान का जन्म नहीं है क्या? पति पत्नी, इन्हीं का स्वरूप क्या हो जाता है जब संतान आ गई? तो माता पिता। मानव संतानें जब परिवार में आती हैं तो यही क्या हो जाती हैं? भाई बहन। यही मानव संतान जब 2.5-3 साल की हो जाती है और जानने की इच्छा करती है तो उसे एक और संबंध दिखाई पड़ता है, गुरु शिष्य। यही मानव संतान जब आगे चल करके अपना कोई काम धंधा करता है, साथी सहयोगी। इस तरीके से हर मानव संबंधों में जी ही रहा है, आप चाहो न चाहो। ये और बात है कि ठीक से नहीं जी रहा है, ये और बात है। आप परिवार के बिना आए ही नहीं हैं। आप सोचो हम परिवार से छटक के अलग होके कुछ हो जाएं, कुछ नहीं होगा। आपको परिवार की याद आती ही रहेगी। एक भी संबंध टूटा, मानसिक रूप से सुख का चक्र टूटा। एक भी टूटा हुआ संबंध आदमी को तृप्ति नहीं दे सकता। आदमी का डिज़ाइन है ये, उसके पास। और मज़ेदार बात देखिए, मैंने आप लोगों से एक और बात कही थी, मैं जितनी भी बातें कहूँगी ये सारे के सारे सार्वभौमिक सत्यों की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो अस्तित्व की बात कर रहे हैं ना, हम संसार का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। संसार में बड़ी समस्या, बड़ी पीड़ा, क्योंकि ना समझीवश कितनी गलतियाँ हो सकती हैं। ना समझीवश होने वाली गलतियों की संख्या अनंत है। गलतियों की चर्चा नहीं है जीवन विद्या, समाधान की चर्चा है, अस्तित्व सहज डिज़ाइन की चर्चा है। तो ये भी बड़ा अद्भुत है कि किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी लिंग का हो, और इस धरती पर कहीं पर भी हो मानव, हर एक मानव ने या हर एक प्रकार के मानवों में इतने ही संबंध हैं, इतने ही संबंध हैं। क्या अद्भुत बात! आपको कभी आश्चर्य नहीं लगा कि कैसे पहचाना होगा भाई बहन संबंध? जब अंग्रेज और कहीं कोई बिल्कुल अलग और कहीं कोई बिल्कुल अलग पैदा हुआ होगा मानव संतान, तो सबने कैसे पहचान लिया कि माता है, पिता हैं। और ये बहुत अद्भुत बात है अपने आप में। संबंध कुल इतने ही हैं और बाकी सब जो है वो थोड़े से भ्रम स्वरूप हैं, उनमें अपेक्षा वही है। जानते हैं कैसे? जैसे माता और सास ये एक हो जाए, मज़ा आ जाए। माता, मौसी, काकी, नानी, दादी, ये सब मूलतः क्या हैं? ये सब के सारे संबंध क्या हैं? माता स्वरूप संबंध। इसी तरीके से ससुर, मौसाजी, काका, नाना, दादा, ये सब पिता स्वरूप हैं। और इनको बालक में ये डिज़ाइन है कि ये इन संबंधों को पहचान जाता है। इसका एक्सपेरिमेंट हमने अपने घर में किया। मेरी बहन का बेटा है, तो उसको हमने कभी बताया नहीं कि हम सब, उसने सिर्फ हमको मौसी कहना शुरू किया। उसने मेरा एक नाम रखा हुआ है, मौसी भी नहीं बोलता, एक नाम बोलता है सिर्फ मेरा। उसने मेरा नाम रखा है कोजू, अपने आप से उसने नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो है मुझे कोजू बोलता है और दीदी कोजू बोलता है, क्योंकि मेरी बहन मुझे दीदी बोलती है, तो मैं दीदी कोजू। और ये बहुत अद्भुत है कि बच्चा कैसे संबंध पहचान जाता है। तो उसको नानी, नाना, ये सारे संबंध हमने बताए। फिर हमने जब वो करीब 3 साल का हो गया ना, तो उससे पूछा कि आप मेरे को बताओ कि जो नानी है वो कौन है। तो बोलता है मेरी मम्मी की मम्मी है। मैं कौन हूँ? मौसा जी कौन है? तो उसने मुझे सब कुछ बताया कि ये आपके हस्बैंड हैं। मौसा जी कौन है? ये आपके हस्बैंड हैं।
ये आपके ये हैं, ये आपके ये हैं, उसको ये सारे संबंध, कभी हमने उसको ऐसे बैठ के नहीं पढ़ाया सिखाया कि ये आपके कौन है कौन नहीं है, लेकिन वो 2.5-3 साल का था, उसने हमको सब कुछ बता दिया। तो ये अद्भुत मुझे लगा कि मतलब हर एक मानव में संबंध को पहचानने का डिज़ाइन भी है। तो इस अस्तित्व में या इस धरती पर जहाँ चारों अवस्थाएं उदय हो गई हैं और मानव उदय हो गया है, तो मानव का एक डिज़ाइन है संबंधों को पहचानने का। हम संबंधों को पहचानते हैं और संबंधों के स्वरूप को भी हमारे अंदर पहचानने का डिज़ाइन है। ये जितने संबंध हैं ना, सास, मौसी, काकी, नानी, दादी, ये जो संबंध हैं, यदि ये सारे संबंध बिल्कुल माता स्वरूप में हो जाए ना, तो सारी शिकवा, सारी गिला समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अस्तित्व का एक डिज़ाइन है कि ये सारे संबंध अस्तित्व में है नहीं, अस्तित्व में ये है, ये है, ये तो सिर्फ संबोधन है। ये सारे के सारे क्या हैं? संबोधन है, ये संबोधन है। लेकिन इसमें अपेक्षा कैसी है? बिल्कुल माँ जैसी मासी, नाम ही मासी, माँ जैसी वही मासी। तो हमारी मूलभूत अपेक्षा, इसी प्रकार यहाँ पर भी हमने बहुत सारे संबोधन दिए हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि अलग अलग लोगों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन मूलभूत अपेक्षा क्या रहती है? सेम। इसी तरीके से भाई बहन जैसा एक और संबंध है मित्र मित्र संबंध। भाई बहन संबंध और मित्र मित्र संबंध में इतना ही अंतर है कि पता चलता है कि ये एक ही माता पिता के संतान हैं और मित्र मित्र जो हैं अलग अलग माता पिता के संतान हैं। लेकिन इस संबंध में कोई दूरी नहीं है। जो अपेक्षा है वो बिल्कुल डिटो एक जैसी है। तो भाई बहन संबंध और मित्र मित्र संबंध मूलतः एक ही, और इसको भी पूरे आप देखिए किसी भी भाषा को उठा लीजिए, उसमें फ्रेंडशिप के लिए आपको शब्द मिलेगा, फ्रेंड होते हैं। तो मतलब अस्तित्व सहज विधि से कुछ चीज़ें और घटी। मानव समझा नहीं समझा ये दूसरी बात, लेकिन अस्तित्व सहज विधि से क्या हुआ? जब ज्ञानावस्था का मानव इस धरती पर प्रकट हुआ तो अपने आप किसी स्वरूप में वो सजा। तो किस स्वरूप पे सजा? तो पहले तो व्यक्ति का प्रकटन है, मतलब एज एन इंडिविजुअल हम भी हैं ही, हमारा भी अस्तित्व तो है ही। तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति से बड़ी एक व्यवस्था है परिवार। परिवार जो है वो व्यवस्था की मूलभूत इकाई है। क्यों मूलभूत इकाई है? क्योंकि परिवार में ही व्यक्ति का जन्म है और यहीं से ही व्यक्ति का जाना भी है। परिवार कभी ख़त्म नहीं होता, व्यक्ति आते जाते रहते हैं। क्या अद्भुत बात! परिवार कभी ख़त्म नहीं होता, केवल उसमें लोग जो हैं वो आते जाते रहते हैं। तो परिवार क्या है? व्यवस्था की मूलभूत इकाई। और इसको करने के लिए आदमी को किसी विशेष ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये भी अद्भुत है कि संसार में या इस दुनिया में कुछ ज्ञान हुआ नहीं हुआ, इसके बावजूद आदमी परिवार के रूप में सज गया। उसको सजाना नहीं पड़ा, सज गया। सोचिए, वरना आदि मानव जिस तरीके से गुफा में रहता होगा, कैसे हुआ होगा ऐसा? अभी तो पूरा जो हम ज्ञान की बात कर रहे हैं वो ज्ञान भी नहीं है ना? तो लेकिन वो सज गया। तो व्यक्ति परिवार के रूप में, और उसके बाद उसमें एक और अपेक्षा रही कि वो सभी मानव एक स्वरूप में आ जाएं, जिसको हम कह रहे हैं समाज। तो मानव में एक और अपेक्षा है, केवल वो अपने शरीरगत परिवार के साथ सजना नहीं चाहता, मतलब व्यवस्थित नहीं होना चाहता, उतना ही व्यवस्थित नहीं होना चाहता। मानव उससे अधिक व्यवस्थित होना चाहता है। मतलब परिवार की परस्परता। समाज का मतलब है परिवार जो है वो साथ में आ जाए। ये है, अगर ये परिवार P1, परिवार 2, परिवार 3, इस तरीके से ऐसे करते करते देखिए अस्तित्व में परिवार हैं, और परिवार जो है ना इस तरीके से सजे हुए हैं। मानव जो है परिवार में आता है, जन्म लेता है और यहीं पर ही शरीर छोड़ देता है, और उस परिवार में जन्म मरण चलता रहता है, संबंध बने रहते हैं। कभी जो माता पिता होते हैं वही एक समय में बच्चे होते हैं, एक समय में माता पिता, एक समय में दादी दादा, और इसके बाद शरीर चला गया। लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं फिर पुनः वो आगे माता पिता बनते हैं,
है ना। इस तरीके से परिवार बने रहते हैं। व्यवस्था की एक मूलभूत इकाई है परिवार। आदमी को आप परिवार से अलग करेंगे, आदमी दुखी हो जाएगा। परिवार से अलग आप अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन अगर उसको यहाँ आपने अलग किया, मानसिकता में अलग किया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। संबंधों में टूटन जो है ना, वो एक मानसिकता, बौद्धिकता का विषय है, दूरी का विषय नहीं है। शारीरिक दूरी कोई मुद्दा नहीं है। माँ बाप खुशी खुशी बच्चे को पढ़ने भेज देते हैं, कमाने भेज देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो मुद्दा नहीं है। एक ही घर में रह करके भी यदि मानसिक रूप से हम एक नहीं हो पा रहे, वो मुद्दा है, वो पीड़ाकारी है। आदमी जो है परिवार व्यवस्था की मूलभूत इकाई, और आदमी इस परिवार व्यवस्था का एक अंश स्वरूप है। ये अस्तित्व सहज बात है। तो अब यहाँ पर हमें कैसे रहना, इसको थोड़ा सीखने की आवश्यकता है ना। चलिए, तो दूसरी बात है समाज। बालक को यदि देखें तो बालक कैसा है, अपने पराये की मानसिकता से मुक्त। बालक में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं रहता। मैं तो अफ्रीका गई हूँ, मैंने कुछ वाइट बच्चों को भी देखा है। एक्चुअली बच्चों में ना ये रंग वंग को लेके बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रहता। उनको नहीं लगता कि वो काले हैं और उनको गोरे होने की ज़रूरत है, उनको नहीं लगता। उनको तो कोई सिखाता है। रंग, नस्ल, मत, पंथ, संप्रदाय, ये सारे कोई भी प्रकार के भेद नहीं होते। तो हमें सिखाना पड़ता है कि बेटा उसको मत छुओ, वो फलानी जाति का है, बेटा उनके घर मत जाओ, उनके घर का खाना मत खाना। हमको एक्चुअली बच्चे को लोगों से तोड़ना पड़ता है शिक्षा के नाम पे। आज की यथास्थिति जो है, हमें एक्चुअली बच्चे को डराना पड़ता है। हमें बच्चे को डराना पड़ता है, बेटा कोई कुछ दे आप ले मत लीजिएगा रास्ते में। हमें बच्चे को डराना पड़ता है। बच्चे में भय जन्मजात नहीं है, केवल शरीर को बनाए रखने के अर्थ में है। बच्चा जो है ऊंचाई से डरता है। बच्चा केवल दो चीज़ों से डरता है, एक ऊंचाई से और एक और कुछ चीज़ है, शायद पता नहीं पानी की गहराई से, ऐसा कुछ है। दो चीज़ों से बच्चा डरता है, हवा से, आवाज़ से। बच्चा केवल दो चीज़ों से जन्मजात रूप से डरता है। ये साइंटिफिक सब फैक्ट्स बता रही हूँ मैं आपको, ये सब रिसर्चेस हैं। आप इसको गूगल करेंगे, आपको सारा डेटा देखने को मिलेगा। केवल ऊंचाई से, क्योंकि ऊंचाई से गिरेगा तो उसका मृत्यु का वो रहेगा, है ना, तो उससे चीज़ें डरता है स्वाभाविक रूप से। ऊंची आवाज़ जो होती है उससे डरता है, क्योंकि ये दोनों जो है बॉडी के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। अन्यथा बच्चा इंसानों से नहीं डरता। इंसानों से हमको उसको डराना पड़ता है। क्या करते हैं, क्यों करते हैं, वो मुद्दा आप सोचिएगा, विचार करिएगा। अभी तो हम अस्तित्व सहज विधि से बात कर रहे हैं। तो परिवारों की परस्परता में वो बच्चा जो अपने पराये की मानसिकता से मुक्त था, उसको हमने भर भर के अपने पराये की मानसिकता डाली। ये अपना है, वो पराया, अपना पराया, अपना पराया, और अपना पराया करते 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 कहाँ पहुँचे हैं? आपस में होड़, जिंदगी में दौड़, आपस में होड़, और देश तक देखेंगे तो युद्ध। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। शिक्षा में जो अपने पराये की मानसिकता से मुक्त बच्चा जो था ना, एक एक करके संबंध पहचानता। पहले स्वयं से आगे बढ़ा, माँ को पहचाना, फिर बाप को पहचाना, अपने पूरे परिवार को पहचाना। परिवार को पहचानने के बाद अपने गांव को पहचानने की तरफ आगे बढ़ा, अपने पड़ोसी को पहचाना। अब बच्चा अपने गांव को पहचाने, गांव के बाद अपने और विस्तार के एरिया, क्षेत्र को पहचाने। क्षेत्र को पहचानते पहचानते बालक की जो कल्पना तृप्त होती, यदि ये बच्चा अखंड समाज के रूप में समस्त मानव जाति को पहचान लेता, यदि हम सबको एक मान पाते, अखंड समाज के रूप में ये बालक सबको पहचान पाता, तो ये बालक तृप्त होता। क्या लगता है आपको? हम सब वही जिज्ञासु बालक हैं। तो ये जो समाज में हमारी तृप्ति जानते हैं कब होती? जब समाज में अभय होता, हमें किसी का डर नहीं होता। हम कहते बेटा उनसे कुछ लेके खाना मत, पता नहीं क्या मिला के खिला दें। जब मैं पहली बार 9th क्लास में मैं ट्रेन में बैठी ना, तो कानपुर स्टेशन में, मैं कानपुर से हूँ मूलतः, तो कानपुर स्टेशन में जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे, जहर खुरानी गिरोह से सावधान। उससे पहले तो मैंने ये सब देखा नहीं था, और मैं इतना घबरा गई स्टेशन में, मुझे लगा यहाँ पता नहीं कौन मुझे जहर खिला दे, है ना। तो मैं एकदम चुपचाप, मुझे सिर्फ कानपुर से लखनऊ तक जाना था,
और कानपुर से लखनऊ तक जाने में 2 घंटे में इतने डर में बैठी रही, मैं सोचती रही कि कौन मुझे जहर खिला देगा। ये सच है। अभी यहाँ पर भी बाय द वे दिखाई पड़ते हैं और बहुत सारे स्टेशन पे आप देखिएगा। हाँ, मुंबई में भी, यस, बहुत सारी जगह पे कि किसी का दिया हुआ कुछ खाइए मत। आदमी इस तरीके से तृप्त हो पा रहा है, तृप्त होने का डिज़ाइन नहीं है। हम अभय पूर्वक जीना चाहते हैं। हमको आप बताइए, जो माएँ हैं वो बताएं, हमारा छोटा बच्चा कहीं पर भी जाए उसको कोई भय ना हो, ये आपको तृप्ति देता है, या उसको जगह जगह पर भय और आप उसको बार बार ये सब सिखाते रहे वो आपको तृप्ति देता है? बताइए क्या तृप्तिदायक है? अभयता मानव के लिए तृप्तिदायक है। अखंड समाज मानसिकता और अखंड समाज के रूप में हमारा सजना, ये मानव के लिए तृप्तिदायक है। तो मानव जो है ना, व्यक्ति के रूप में समाधान, परिवार के रूप में समाधान के साथ समृद्धि, और समाज के रूप में भेदभाव नहीं चाहता है, नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। हम हो गए हैं और वो एक दूसरी कहानी है। वो जो दूसरी कहानियाँ वो आएंगी क्रमशः कि ऐसा क्यों हो गया, हमने ऐसा कैसे सोच लिया, ये सारी चीज़ें। लेकिन मानव की तृप्ति का स्थान है समाज में अभय। और इस तरीके से समाज के बाद, जिसको हम एक और शब्द है राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब होता है अखंड समाज, मतलब आगे सभी मानव, सभी मानव मतलब अखंड समाज, और सारी शेष प्रकृति, शेष प्रकृति, इसको हम कह रहे हैं राष्ट्र। इसको मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद राष्ट्र कह रहा है। राष्ट्र मतलब मानवों के अतिरिक्त जो तीनों अवस्थाएं हैं, मतलब प्राण अवस्था, पदार्थ अवस्था और जीव अवस्था, ये तीनों भी खुशहाली पूर्वक रहें, क्योंकि इसके कारण ही ताप का संतुलन, इसके कारण ही खनिज का संतुलन, और इसके कारण ही ऋतु का संतुलन है। और यदि ताप, खनिज और ऋतु का संतुलन है तो ही मानव उत्पादन कर पाएगा, और तब वो जब उत्पादन करेगा तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेगा, और जब आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है तो आदमी का डिज़ाइन है उसको बांट देने का। आदमी शोषित करके सुखी नहीं होता, आदमी बांट के सुखी होता है। एक तृप्ति होती है बांटने की। तो आदमी समृद्धि मतलब आवश्यकता से अधिक का उत्पादन, और जब आवश्यकता से अधिक उत्पादित हो गया तो उसको हमने नियोजित कर दिया आगे, यहाँ से मानव को तृप्ति है। ये मानव में तृप्ति का डिज़ाइन है कि नहीं अद्भुत? और इस तरीके से राष्ट्र के रूप में सह अस्तित्व को प्रमाणित करना, सह अस्तित्व को प्रमाणित करना। किसके साथ सह अस्तित्व? चारों अवस्थाओं के साथ सह अस्तित्व। जैसे जीवावस्था जब आई तो स्वयं में समाधान स्वरूप, और बाकी दोनों अवस्थाओं के साथ समृद्धि को प्रमाणित किया। वैसे ही जब मानव, सभी मानव एक, मानव जाति एक के रूप में या अखंड समाज के रूप में हम गठित हुए, तो ये जो शेष प्रकृति है, इसका दोहन, इसका शोषण, इसके साथ जो अपराध हम कर रहे हैं वो अपने आप रुकेगा। क्योंकि अलग अलग हम सब में कामना है, लेकिन कार्यक्रम करने के लिए हम सबका संगठित होना जरूरी है। तो इसको करता है मानव। तो क्या करता है जानते हैं? सह अस्तित्व को प्रमाणित करता है, सह अस्तित्व को प्रमाणित करता है। तो अस्तित्व, अगला सूत्र है अस्तित्व सह अस्तित्व है। अस्तित्व क्या है? सह अस्तित्व है। अस्तित्व में प्रकटन है, अस्तित्व में जो प्रकटन है वो एक अनुक्रम से है, और अनुक्रम पूर्वक इस सह अस्तित्व का दृष्टा, सह अस्तित्व का दृष्टा कौन है? कौन है श्लोक? मानव। इस सह अस्तित्व को, इस उपयोगिता पूरकता को, इस समाधान समृद्धि को समझने वाला मानव है। और जिस दिन मानव इस डिज़ाइन को समझता है तो इसने देखा, इसने समझा। दृष्टा मतलब देखना, मतलब समझना। और इसने सह अस्तित्व को जिस दिन देख लिया, उस दिन ये क्या करता है? इसको प्रमाणित कर देता है। प्रमाणित करने का मतलब है जैसा समझा वैसा जिया। हम सब प्रमाणित कर ही रहे हैं। जानते हैं क्या? जो समझा है वो प्रमाणित कर रहे हैं। हमारा आचरण हमारा प्रमाण है, हमारी समझ का प्रमाण हमारा आचरण है।
हम क्या कर रहे हैं इस बात से पता चलता है आपने क्या समझा है। 2 और 2 उत्तर पूछेंगे, आप बोलेंगे 4, हमको समझ में आ जाएगा आपको जोड़ना आता है। हम पूछें और आपने उत्तर दिया 5, किसी ने बोला 8, किसी ने बोला 9, मतलब नहीं समझा है। सिंपल है एकदम। ठीक लगती है बात? तो मानव जो है समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व इस लक्ष्य के साथ इस धरती पर है। यह अस्तित्व का डिज़ाइन है, हमारा समाधान स्वरूप होना। बढ़िया बढ़िया। दिग्ना बहन बताइए क्या क्या बात पहुंची, रखें। जो सुबह में हमने समझा था कि समाधान की तरफ हम ज्ञान अवस्था को कैसे ले जा सकते हैं, तो अभी जैसे अभी हमने देखा कि सारे जो हमारे जैसे माता पिता के, भाई बहन के जो रिश्ते हैं, ठीक है, और वो कैसे बालक या हम लोग समझ के समाधान से हम पहले तो व्यक्ति बने, फिर परिवार में कैसे हम समृद्धि लाए, और ऐसे सारे परिवार, समृद्ध परिवार एक अच्छा सा अभय मुक्त समाज बनता है और उसी से एक समृद्ध राष्ट्र बनता है। तो वैसे सह अस्तित्व में हम सबके साथ कैसे बैलेंस करके चले, वो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये समझ में आया कि एक सह अस्तित्व में एक कैसे हमको एक अभय मुक्त राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए कैसे परिवार और व्यक्ति, मतलब हमको कैसे अपनी समझ से कैसे व्यक्ति बनना है, पूरे सहअस्तित्व में बैलेंस करके चलने के लिए। और कोई कुछ बताना चाहे? जिन लोगों को ये फोटो खींचना तो खींच लीजिएगा, नहीं तो रह गया, नहीं तो फिर इसमें से वीडियो रिकॉर्डिंग में से देख। तुम्हारा माइक था? यही माइक था। अच्छा, आई नीड द माइक है ना। और कोई कुछ जोड़ना चाहे? हेलो, चलिए तो कुछ बातों पर आते हैं। तो व्यक्ति का स्वरूप कैसा हो? समाधान स्वरूप। परिवार, तो परिवार कैसे बनता है? व्यक्तियों से मिल करके, है ना। तो परिवार मतलब व्यक्ति व्यक्ति संबंध। तो ये भी समाधानित, ये भी समाधानित। तो परिवार में क्या दिखाई पड़ेगा? समाधान और उसके साथ समृद्धि। समृद्धि का मतलब क्या होता है? जो तीनों अवस्थाएं हैं, कौन सी 3 अवस्थाएं? पदार्थ, प्राण और जीवावस्था, है ना। ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, इनको क्या करना? और समृद्ध करना और बढ़िया करना। अब आपको मैं एक समृद्धि के स्वरूप का उदाहरण देती हूँ। जब हम 2014 में एक्चुअली हम लोग यहाँ पर आए थे, तो 2014 में जब मैं यहाँ आई और हमने जीवामृत बनाना सीखा, अद्भुत वस्तु जीवामृत। तो मुझे लगा, पहले तो हमको पता चला गाय इतनी अद्भुत चीज़ है, बहुत कुछ चीज़ें एक एक करके पता चली। तो मुझे लगा कि देखो, ये जो आदमी है भाई, पदार्थ अद्भुत चीज़, प्राण अद्भुत चीज़ और गाय अद्भुत चीज़। लेकिन इतना समझने के बाद आदमी ने कहा नहीं भाई देखो, वो भी नहीं, अपन क्या बनाएंगे? जीवामृत। जीवामृत की खासियत क्या है कि जो उपजाऊपन गाय से आपको 6 महीने में मिलेगा, जीवामृत के माध्यम से वही चीज़ आपको 15 दिन में उपलब्ध हो जाएगी। जीवामृत क्या है वो समझने के लिए आप यहाँ पर एक शिविर जरूर करिएगा। 12, 13, 14 प्राकृतिक खेती का शिविर होता है। उस दिन मुझे समझ में आया कि आदमी ने जीवामृत बना लिया, मतलब आदमी में भी कुछ खासियत है।
तीनों अवस्थाओं को जल्दी से समृद्ध करने की ताकत आदमी में है। पहले मुझे लगा केवल गाय ही ये काम कर सकती है, लेकिन नहीं। गाय को स्टडी करेगा ह्यूमन बीइंग, गाय का अध्ययन करेगा मानव, और मानव अध्ययन करने के बाद ऐसी अद्भुत चीज़ जीवामृत, बीजामृत, ब्रह्मनीमास्त्र और पता नहीं ब्रह्मास्त्र और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, और हमने उनके खूब प्रयोग किए हैं, है ना। क्या उसका नाम था? ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, क्या था? हाँ, वो जो आंकड़ा और खिपड़ा और थोड़ उसको मिला के बनाते हैं, उसका नाम तो मैं भूल गई। हमने उसके प्रयोग किए हैं, उससे परिणाम पाए हैं। और जब ये मैंने कहा ना 6 साल में अपने खेत में अध्ययन करती रही कि कैसे चल रहा है ये डिज़ाइन, अद्भुत डिज़ाइन है ना। तो आदमी ने ये भी समझ लिया और प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके उसने जीवामृत भी बना लिया। और जीवामृत बना करके जो ये 3 अवस्थाओं में समृद्धि 6 महीने में होती, उसको उसने 15 दिन में ला करके खड़ा कर दिया। ये आदमी की ताकत है। तालियां हो जाएं हमारे अपने लिए। आदमी में इतना स्किल है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जगह, ये पूरा किसी आदमी के मनाकार का साकार स्वरूप है। ये आदमी की ताकत है। घास अस्तित्व में है और झोपड़ी हमने बनाई है, हमने बनाई है। ये आदमी की ताकत है, आदमी का एक डिज़ाइन है। तो परिवार में क्या है? समाधान और समृद्धि का प्रमाण। तीनों अवस्थाओं का पोषण क्या है? समृद्धि मतलब तीनों अवस्थाओं का पोषण, बल्कि चारों अवस्थाओं का। तीनों क्या, उससे जो उत्पादन होगा उससे मानव का भी तो पोषण करेंगे। तो चारों अवस्थाओं का पोषण, चारों अवस्थाओं का पोषण। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि ज्ञानावस्था की इकाई किस प्रकार से समृद्धिकारी होती है, उसका मैंने उदाहरण दिया, है ना। तो ये जो जीवामृत है, यहाँ पर ज्ञानावस्था ने क्या बनाया उसको लिख लीजिए। आप लोग नोट्स लेना चाहें तो थोड़ा स्पीड से ही, लेकिन आपको लिखते रहना पड़ेगा, है ना। तो जीवामृत बना करके उसने समृद्धि के स्वरूप को प्रस्तुत किया है। उसके लिए आपको उसको सीखना है। 3 दिन का शिविर है, सीख लीजिएगा आके, है ना। उसमें भी कुछ फीस वगैरह है नहीं, आराम से आइए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना जुलना, सीखना, पढ़ना, अपने अध्ययन को पूरा तो करे मानव। फिर समाज को हम जब समाज कह रहे हैं यहाँ पर, तो हम संप्रदाय नहीं कह रहे, समुदाय नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे हैं। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद कहता है ये भ्रम है। भ्रम है मतलब ऐसा, ये रियलिटी नहीं है। जो सत्य है वो ये है, समाज। समाज का मतलब है परिवार, परिवार की परस्परता, परिवार, परिवार की परस्परता। और आदमी का तृप्ति बिंदु है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति में समाधान, और ऐसे समाधान से सजा हुआ, समाधानित व्यक्तियों से सजा हुआ परिवार, और ऐसा सजा हुआ परिवार चारों अवस्थाओं में संतुलन पूर्वक उसका पोषण संरक्षण करता हुआ। और इस तरीके से परिवारों में एक अभयता का स्वरूप निकले, समाधान, समृद्धि और अभय। और इस तरीके से राष्ट्र, जिसको हम कह रहे हैं, राष्ट्र मतलब अखंड मानव समाज, प्लस 3 अवस्थाएं। तो ये जो अखंड मानव समाज है, ये बना कैसे है? क्योंकि मानव ने अस्तित्व में समाधान को पहचाना है। मानव ने अस्तित्व में समाधान को पहचाना, तो समाधान को पहचाने के फलस्वरूप क्या हुआ? अखंड मानव समाज के रूप में अपने आप को पहचान पाया या गठित हो पाया। और इस तरीके से उसने क्या किया? तीनों अवस्थाओं का क्या किया? पोषण किया, संरक्षण किया। तो इस तरीके से उसने क्या किया? तो समाधान, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व को प्रमाणित किया। सह अस्तित्व का प्रमाण, प्रमाण मतलब ऐसा आचरण किया, सह अस्तित्व को प्रमाणित किया। तो इस सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए मानव के द्वारा इसी का अध्ययन होना है। सह अस्तित्व का
अध्ययन होना है। जैसा समझेगा वैसा आचरण करेगा। तो जो समझना है ठीक ठीक समझ जाना है हर एक वस्तु को। तीन ही बातें समझनी है, वस्तु क्या है, वस्तु क्यों है और कैसे इसके साथ निभना है। वस्तु क्या है ये समझ में आ जाए, वस्तु क्यों है मतलब उसका प्रयोजन क्या है ये समझ में आ जाए, और इसके साथ मानव को कैसे निभना है ये समझ में आ जाए। तीन ही बातें समझनी है। असल में शिक्षा बहुत छोटी चीज़ है, छोटी मतलब बहुत कॉम्पैक्ट चीज़ है, बहुत सारी नहीं है। हम लोगों को कभी कभी लगता है कि बहुत बड़ी कोई चीज़ होगी, नहीं, थोड़ी बातें समझ में आने से आदमी का जीना बन जाता है। ठीक है, तो अब हम इस पर वापस आएंगे, व्यक्ति में समाधान का स्वरूप कैसा हो। आप लोग जो नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए 2 मिनट। नहीं, मानव लक्ष्य तो समाधान, समृद्धि, सब अभय सह अस्तित्व मानव लक्ष्य है। और चारों अवस्थाओं में संतुलन हो जाए तो क्या इसमें 3 का तो पूरा है ही, उपयोगी और पूरकता विधि से वो चल रहे हैं। तीनों अवस्थाएं उनका तालमेल तो बरोबर चल रहा है। उसमें मानव का डायरेक्शन गलत है, वो खाली इनसे लेना ही जान रहा है, देता कुछ नहीं है। तो मानव का जो लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य को जाने कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है, करना क्या है। ये तीनों चीज़ ये मध्यस्थ दर्शन के थ्रू मानव को, बाबा जी ने जो नागराज जी ने लिखा है बुक है, उसमें सारा चीज़ जैसे ही अध्ययन पठन आगे का रहता है। और परिचय शिविर में तो परिचय ही होता है, जितना आप खोल ही रहे हो, तो आगे का, क्योंकि कोई भी आज भय के साथ तो जीना हो नहीं पाता है किसी का भी। हर आदमी मतलब चाहता है, कोई आदमी, एक भी आदमी से पूछो तो ये नहीं चाहेगा उसको दूसरा कोई हैंडल करे। मानव स्वतंत्र होकर जीना चाहता है, लेकिन उस अभी तो क्या है, कोई डिजाइन ही नहीं है कि जो अभी मानव ने खुद का व्यवस्था बना लिया है जो जिस हिसाब से अपनी मन मर्जी से, तो उसमें तो कहीं स्वतंत्रता जैसा तो कुछ दिख नहीं पा रहा है अभी। अस्तित्व का अध्ययन करने से स्वतंत्रता का भी पूरा खुल के आएगा कि मानव जब सारा अस्तित्व का डिजाइन कैसा है, फिर उसमें मानव भी है तो उसका होने का डिजाइन कैसा होगा। मानव का मूल रूप जो विचार है, तो मानव का विचार हमेशा के लिए कैसे सज जावे। बहुत बढ़िया, बोला लो, बोलो। मानव के अंदर निरंतर सुख की चाहना है। और मानव यानी मानव मतलब मैं अकेला नहीं, यानी सारे जो पूरी पृथ्वी या फिर जितना पूरा यूनिवर्स है या फिर जितनी अनंत गैलेक्सीज पर जितने मानव हैं, जितने जीवन हैं, तो अभी आप जो डिफरेंशिएशन बताओगे, तो जो जीवन है उन सब सारे जीवन की निरंतर सुख की चाहना है। और यानी और उसके बाद परिवार में समृद्धि, समाज में अभय, और उसके बाद सहअस्तित्व। बहुत बढ़िया, तालियां, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी बात और खोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी देखती जाओ, मैं यहाँ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। कुछ बात और जो अभी राम बाबू भाई ने कही, उस बात को थोड़ा सा और खोलते हैं। ये एक बढ़िया बात है, समझने जैसी बात है। मानव जो है ना, भय से नियंत्रित होना नहीं चाहता है, होता भी नहीं है। मानव भय से नियंत्रित नहीं होना चाहता है, होता भी नहीं है।
और कमाल की बात है कि हमारी सारी व्यवस्था ऐसी है जो हमको भय से नियंत्रित कर रही है। आदमी भय से नियंत्रित नहीं है। देखिए, मैं इस पक्ष की बहुत चर्चा नहीं करना चाहती हूँ कि समाज में गलत क्या चल रहा है ना। वो सब समीक्षा आप सभी के दिमाग में बिल्कुल हो जाएगी। सही क्या है ये पता चलना चाहिए, गलत क्या है हमको पता है। सही यदि पता चल जाएगा तो गलत छूट जाएगा। गलत छोड़ने में क्या करना है, वो तो हमको पता नहीं है इसलिए हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो मानव जो है ना, हम यदि मानव को देखें तो मानव शरीर और चैतन्य दो चीज़ों का संयुक्त साकार रूप है। शरीर का और एक उसमें कोई चैतन्य पक्ष है, कुछ चेतना, कुछ चीज़ है जो शरीर को जब छोड़ देती है तो हम कहते हैं ये मुर्दा लाश है। फिर आपका शरीर नहीं रह जाता, फिर दिग्ना बहन नहीं रहेंगे, फिर शालिनी बहन है, फिर शालिनी बहन की बॉडी, शालिनी बहन चले गए, ऐसे ही बोलते हैं ना, शालिनी बहन चले गए छोड़ के, ये शालिनी बहन की बॉडी पड़ी है। शालिनी बहन तो कहीं चले गए, बॉडी पड़ी है। तो ये है बॉडी और ये है शालिनी बहन। ठीक है, ये चैतन्य है, समझने वाला, समझाने वाला शालिनी बहन है, शरीर नहीं है, वो तो लाश है। ये लाश ही है ना। सिर्फ मैं इसके साथ हूँ तब तक एक मानव के रूप में दिखाई पड़ रही हूँ, नहीं तो मानव के रूप में नहीं दिखाई पड़ूंगी, तो नहीं है कहानी। तो शरीर और चैतन्य के रूप में अब हम मानव को यदि देखें, आज की स्थिति को थोड़ा देखें या सामान्य स्थिति को देखते हैं। पहले ये रही आज की स्थिति है ना, और ये एक स्थिति है। तो मानव का जो डिज़ाइन है वो ऐसा है, उसमें 3 प्रकार के भय हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उस तरीके से वो भयभीत होता है। एक तो उसके अंदर प्राकृतिक भय है और दूसरा पाश्विक भय, जिसको मैंने बताया कि ऊंचाई से बच्चा डरता है और ज़ोर की आवाज़ से डरता है, मतलब किसी हिंसक जानवर की आवाज़ से डरता है और ऊंचाई से डरता है। इसको बोलना है प्राकृतिक भय, पाश्विक भय। आदमी जानवर से डरेगा, हिंसक कोई जानवर आएगा वो दौड़ के भागेगा, डरेगा। क्यों डरना है? क्योंकि शरीर को बना के रखना है। तो प्राकृतिक भय और पाश्विक भय जो है ना, ये मूलतः हमारे शरीर में बाय डिफ़ॉल्ट हैं। जैसे ही आपके, मान लीजिए आप थोड़ा, आपको बुखार हो, लेकिन आपके सामने शेर आ जाए, फुर्ती आ जाएगी और आप दौड़ के भागेंगे। हमारे शरीर का ये डिज़ाइन है। इस पर अध्ययन अगर आप चाहें ना, तो इसको फाइट, फ्लाइट और है ना फ्राइट या फ्रीज मोड और फॉन, ऐसे फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, फॉन और फ्लो, एक 5वां मोड है। ऐसे मोड आदमी इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है जब भी कोई खतरे को सामने देखता है। तो जो स्ट्रेस है ना, उसका स्टडी किया हुआ, आप इन चीज़ों को गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारा स्टडी मिलेगा। और यदि आप अध्ययन करना चाहेंगे तो हम लोग तो बैठ के चर्चा करते ही हैं, सारे मुद्दों की चर्चा करेंगे। आप वैसे भी गूगल कर सकते हैं। तो आदमी का एक डिज़ाइन है प्राकृतिक भय और पाश्विक भय से अपने शरीर को बचाने का। इसके लिए उसके शरीर का डिज़ाइन पर्याप्त है, शेर से भी लड़ जाता है। और उसके शरीर का डिज़ाइन इतना खूबसूरत है, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्री को देखें, मैंने कहीं डॉक्यूमेंट्री में देखा था, हमारे शरीर का डिज़ाइन इतना अद्भुत है कि जो अंगूठा है ना, इस अंगूठे का जो एक आनुपातिक जो एक स्ट्रक्चर है, ये ऐसा है कि हम चीज़ों को, जो हम कल्पना करते हैं उसको हम बना सकते हैं। तो हमारा शरीर की बनावट भी ऐसी है कि जो हमारी कल्पना में आए उसको हम अपने हाथ से बना लें। ये हमारा डिज़ाइन है। तो प्राकृतिक और पाश्विक भय को आदमी जीत चुका है, उसने औजार बना लिए औजार बना लिए, उसको कहीं से भी प्राकृतिक भय और पाश्विक भय से अब खतरा नहीं है। हमको आंधी तूफानों से अब डर थोड़ी लगता है कि हमारी झोपड़ी डूब जाएगी, कुछ नहीं होता है। साइक्लोन आते हैं, लोग आराम से बैठे रहते हैं, बढ़िया भजिया चाय बना के खा रहे होते हैं, यही होता है अभी तो हमारे प्राकृतिक भय से हम पार निकल आए, पाश्विक भय से निकल आए। एक चीज़ है जिसको हम देख रहे हैं हमारे समाज में बढ़ती चली जा रही है, मानव में निहित अमानवीयता का भय। हम दिखने में तो मानव जैसे हैं, होने में मानव के जैसे
नहीं हो, कब ना हो हमको पता नहीं है, या दूसरे को पता नहीं है। इसको कह रहे मानव में निहित अमानवीयता का भय। मानव कब दरिंदा बन जाए, कब अमानव बन जाए, कब राक्षस हो जाए, ये हमको पता नहीं है। इस चीज़ से भय है। तो मानव में निहित ये जो अमानवीयता का भय है, ये मानव को स्वीकार नहीं है। तो अमानव से मानव बनाने की शिक्षा। देखिए, इसको और थोड़ा ध्यान से देखें ना। आई डू नॉट वॉन्ट टू क्रिटिसाइज, लेकिन जो शिक्षा है कहीं ना कहीं वो इस प्रकार से हो गई है कि उसने अमानवों को खड़ा कर दिया। जितने भी मिसाइल, रॉकेट, ये वो जो जितनी भी चीज़ें, मतलब माइनिंग और पता नहीं आप कितने प्रकार के शोषण देख लीजिए, इन सबको बनाने वाले कौन हैं? अनपढ़ लोग हैं क्या? सारे शिक्षित लोग, सारे जिन्होंने खूब संग्रह कर लिया, ऐसे लोग। तो कुछ तो उनकी मानसिकता में ऐसा बैठ गया है जिसके कारण से वो तीनों अवस्थाओं का शोषण और साथ में मानव का भी शोषण। मानव को हमने रिसोर्स मान लिया है, ह्यूमन रिसोर्स। किसी को अपना रिसोर्स होना स्वीकार है? स्वीकार नहीं है, लेकिन हमने इसकी मिनिस्ट्री भी बना रखी है। तो दोहन, शोषण किसी को स्वीकार नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी शिक्षा, कुछ ऐसी होड़, कुछ ऐसी दौड़, कुछ तो हम भर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, जिसके कारण से मानव में निहित जो अमानवीयता का भय था वो बढ़ता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि कभी था नहीं, हमेशा ही था। हमारी किस्से कहानियों को भी सुनेंगे ना, बहुत पहले के, तब भी कोई ना कोई अमानव राक्षसी काम किया, फिर उसका कुछ कुछ संहार करना पड़ा, ये वो किस्से कहानियाँ हैं ही। लेकिन आज से 100 वर्ष पहले इतनी दरिंदगी नहीं थी जितनी आज बढ़ गई है। ये भी आश्चर्यजनक है कि शिक्षा जैसे जैसे बढ़ी, पशुता भी आदमी के अंदर वैसे वैसे बढ़ती चली गई, दरिंदगी भी बढ़ती चली गई, धरती का भी शोषण होते चला गया। इसका मतलब है शिक्षा में कोई ना कोई गड़बड़ है, शिक्षा पूरी नहीं पढ़ रही है। जो जिज्ञासु था, जो सत्यवक्ता था, वो छल कपट दंभ पाखंड करने वाला कैसे बन गया? जो न्याय का याचक था, वो अपने पराये की मानसिकता से उसमें कैसे भर गया? वो कैसे कुंठित हो गया बच्चा? यदि हमने नहीं किया तो किसने किया? ये थोड़े कठिन प्रश्न हैं, दिल पे लगते हैं, हमको पूछने पड़ेंगे अपने आप से। जो सही कार्य व्यवहार का इच्छुक था, वो आदमी कैसे धरती का शोषण करने लग गया? किसने सिखाया? हमने सिखाया, हम ही ने सिखाया, है ना। और देखिए, पुनः अपने प्रति भी क्षमा। हमने सिखाया इसलिए क्योंकि हमें भी वही सिखाया गया था, हमको पता नहीं था, अब हमको पता चला, अब हम सही सिखा रहे हैं। तो मानव में निहित अमानवीयता का भय जो है, तो अमानव से मानव बनाने के लिए शिक्षा। तो अमानव से मानव, और दूसरी बात, जो बालक जिज्ञासु है उसको समाधान तक पहुंचाने के लिए शिक्षा। तो देखिए, 2 प्रकार की योजनाएं हैं या 2 प्रकार के कार्यक्रम बाबा जी ने लिखे हैं। अमानव से मानव जो बनाने की योजना है उसको उन्होंने कहा है जीवन विद्या योजना। जीवन विद्या योजना। हमारे आपके जैसे प्रौढ़ लोग जो बड़े हो गए हैं, जो इसी स्कूली सिस्टम में पढ़ के आए हैं, और मानसिकता में बहुत सारी भेदकारी मानसिकताएं हमारे पास आ गई हैं। जो यहाँ लिखा था ना, रंग, नस्ल, मत, पंथ, संप्रदाय, और पता नहीं ऊंचा नीचा, अमीरी गरीबी, है ना, और भी कितने प्रकार की भेदकारी मानसिकताओं से हम ग्रसित हैं। उनसे निकालने के लिए जीवन विद्या योजना। परिचय शिविर, अभी जैसे हम यहाँ पर 3 दिन का परिचय शिविर आपके साथ करेंगे। परिचय शिविर आपको एक झलक देगा कि ये वस्तु क्या है। इतनी बढ़िया अद्भुत वस्तु है ना कि 3 दिन आप सुनोगे, उसके बाद यदि आपकी इच्छा बने 7 दिन का परिचय शिविर। 7 दिन का परिचय शिविर करने के बाद 15 किताबें हैं, 12 किताबें हैं मूलतः, 2-3 और ऐसे ही हैं। 12 किताबों का पूरा अध्ययन, और ऐसा अध्ययन करने के फलस्वरूप आपकी जो मानसिकता है, क्योंकि आदमी जो है, व्यक्ति में समाधान कहाँ है? देखो, ये जो मानसिकता है ना, या तो मानसिकता में हमारी समस्या है,
और या तो हमारी मानसिकता में समाधान है। क्योंकि आदमी क्या है, आदमी समझने समझाने वाली इकाई है। आदमी समझने समझाने वाली इकाई है। वो वही करता है जैसा वो समझता है। तो सबसे पहले हमारी मानसिकता में हम समस्या से किसकी तरफ चले आए, समाधान की तरफ। तो समस्या से समाधान की तरफ आने के लिए इसको हम बोल रहे हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। ऐसे ही क्लासरूम होता है, ऐसे ही स्टडी करते हैं। और ऐसे नहीं करते हैं कि एक पढ़ा रहा है वो, ऐसे हम बैठ जाते हैं सारे और बैठ करके जो किताब में लिखा है उसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। सिंपल तरीका है स्टडी का, अध्ययन करना है। तो अध्ययन करने से हमारी मानसिकता, जो समस्या, जो आज की यथास्थितियाँ हैं, वहाँ अभी हम लोग जन चर्चा में क्या लेके आते हैं, ये समस्या है, वो समस्या है, ये बेकार, वो बेकार, इनका ये खराब, उनका ये खराब। हम यही तो करते हैं सारा दिन। टीवी मीडिया को देख लीजिए, क्या खराब है, ये जनरेशन कैसे खराब है, और बस हम खराब क्या है, खराब क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। ये मैं मानती हूँ कि खराब है, लेकिन सही क्या है, इसकी चर्चा को हमें बढ़ाना है, हमको ये बताना है, ये ठीक बात है कि ये गलत है, सही क्या है। जो लोग बार बार बात करते हैं ना कि ये गलत है, ये गलत है, उनसे पूछो सही क्या है, वो नहीं बता पाते हैं सही क्या है। लेकिन उनको प्यास है, उनको सही की प्यास, इसलिए बार बार ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है पॉइंट आउट करते रहते हैं। गलत वो नहीं है, पर उनको सही पता नहीं है। तो मानसिकता में समाधान। अब मानसिकता कैसे बनती है, समझने समझाने से। समझने समझाने का नाम है अध्ययन। इतनी सी बात, इतनी सी कुल मिला के ये योजना है जीवन विद्या योजना। अभी ममता बहन लोग चले गए, ठीक। तो आगे देखें। और दूसरी एक योजना है जो हमारी शिक्षा है, उसका आमूल चूल परिवर्तन। आमूल चूल परिवर्तन मतलब बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द वेरी एंड, एक बालक को कैसे तैयार करना है कि वो मानव बन जाए, देवता बन जाए। ऐसा क्या है, तो इसी का नाम है चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना। चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना। अभी हम लोग कैसे इवनिंग स्कूल वाले बच्चे हैं, जो वस्तु यहाँ पर पढ़ानी है वही वस्तु यहाँ पर पढ़ानी है, लेकिन ये कैसा है, क्रैश कोर्स जैसा, ठीक है। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा योजना बच्चों के लिए, 5 वर्ष का बालक आए, 20 वर्ष का बालक निकले, इसके लिए ये वाली योजना है। और प्रौढ़ लोगों के लिए जीवन विद्या योजना, जिसके माध्यम से हम अपनी मानसिकता में परिमार्जन कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्कूल नहीं जा सकते। अभी तो बच्चे हो गए, परिवार हमने जो भी बसाना था बसा लिया, कुछ लोग तो प्रौढ़ बूढ़े भी हो गए, वृद्ध भी हो गए, तो अपने पास ये काम। अब बात करते हैं समाधान क्या है आदमी में, ठीक है। इतनी मैं जो बात बोल रही हूँ, क्या ये बात भारी लग रही है आप में से किसी को, कि समझ में आ रही है? आ रही है? भावना बहन समझ में आ रही है? रंजीता बहन आ रही है? लक्ष्मी बहन आ रही है? आपको गोविंद भाई भारी तो नहीं लग रहा है कि बहुत भारी हो रहा है? ठीक लग रहा है। विजय भाई ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे समाधान की। सबसे बड़ी बात, ये जो समाधान है ये होना कहाँ है? मानसिकता में। ये जो मानसिकता है ये कहाँ है? हमारे शरीर में है या हमारे चैतन्य पक्ष में? ये जो मानसिकता है वो हमारे शरीर में रहती है कि हमारे चैतन्य पक्ष में? चैतन्य पक्ष में। इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि हमारे शरीर में कहीं इधर मानसिकता रहती है, कहीं इधर में मानसिकता रहती है। ऐसा तो नहीं कि ये तो ध्यान में आता है ना, क्योंकि जो लाश है वो कुछ कर नहीं पाती है। ठीक है, ठीक, बढ़िया। चलिए अब हम मानव में समाधान। हाँ हाँ, आप प्लीज़ इसका फ़ोटो खींच लें। सॉरी, थोड़े पुराने अभ्यास रहते हैं ना, फटाफट फ़ोटो ले लीजिए। हाँ, फ़ोटो ले लो बेटा। आपका वीडियो चल रहा है। अच्छा, चलिए। व्यक्ति ठीक है,
व्यक्ति। तो ये जो व्यक्ति है ये शरीर और चैतन्य दो चीज़ों का संयुक्त साकार रूप है, संयुक्त है, साथ में है। अब ये चैतन्य पक्ष क्या है ये खोलने के लिए, जानने के लिए आपसे मुलाकात होगी कल। ये चैतन्य क्या वस्तु है और हम ऐसे हैं तो ऐसे क्यों हैं, इसके लिए परसों, ये 2 दिन हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं उसके लिए परसों, और कल चैतन्य क्या है इसको खोलेंगे। अभी चैतन्य कैसा है इसको खोलेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे, थोड़ा सा ही खोल पाएंगे क्योंकि तो ये जो चैतन्य है हमारे भीतर, जो चेतना है, इसमें 2 चीज़ें हैं, कल्पनाशीलता। और ये जो कल्पनाशीलता का मतलब है हमारे पास आशा है, विचार है, कोई इच्छा है, इस तरीके की कोई वस्तु है। ये जो कल्पनाशीलता है हमारे अंदर, एक जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है, ये बड़ी अद्भुत पावर है। आपको देखनी है ये पावर, देखिए हम आपको दिखाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आज ये कि आप आँख से नहीं देखते। हम बच्चों को सिखाते हैं ना, हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आप सब देखिए। एक सेब, आप में से कितने लोगों को सेब दिखाई पड़ गया? सेब दिख गया आपको? पर मैंने कहा सुनो, सेब जो है लाल नहीं है, हरा है। कितने लोग को हरा सेब दिख गया? दिखा हरा सेब? सबको दिखा। मैंने कहा सुनो, वो जो हरा सेब है पूरा नहीं है, आधा है। कितने लोगों को आधा सेब दिख गया? मैंने कहा सुनो, वो जो आधा सेब है उसके बाजू में दूसरा आधा भी है, लेकिन वो दूसरा आधा इसलिए काट दिया था क्योंकि सड़ गया था। कितने लोगों को वो सड़ा हुआ सेब भी दिख गया? आधा सड़ा हुआ सेब दिखा? तो आदमी जो है ना, वो अपनी कल्पनाशीलता से देखता है। आँख से कुछ चीज़ दिखती है, वो सब आगे आएगा कल, आज नहीं। अद्भुत, असल में जो असली जीवन विद्या है ना, वो तो अब शुरू होने वाली है। असली जीवन विद्या कल और परसों है, आज तो ट्रेलर ही चल रहा है ना। आदमी आँख से नहीं देखता, कान से नहीं सुनता, कान के माध्यम से कोई और सुनता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कान से अपने स्कूल की घंटी सुनिए, सॉरी कान से नहीं, अपने स्कूल की घंटी सुनिए। आप में से कितने लोगों को वो घंटी सुनाई पड़ने लग गई? सुनाई पड़ने लग गई। आदमी इतनी अद्भुत चीज़ है ना, मानव का जब हम अध्ययन करते हैं तो लगता है क्या चीज़ है। आदमी कल्पनाशील है, जैसा जैसा हम उसको बताते जाते हैं वैसा वैसा उसके दिमाग में चित्रण होते चला जाता है और वो उसके साथ तदाकार हो जाता है। तदाकार होने से क्या आशा है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। आप सब आंख बंद करिए, आंख बंद करिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। आंख बंद करिए और बिल्कुल आप छोटे बच्चे हैं, कल्पना कीजिए कि आपके जो अगर स्कूल के बाहर कोई चूरन वाला, इमली वाला, कमरख वाला, बेर वाला ये व्यक्ति है और आप उससे जो है ना अठन्नी की इमली खरीदने वाले हैं। तो जो अठन्नी की इमली है आपने मुंह में रखी और अब आँख खोल लीजिए। कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया? मुंह में पानी आया? इमली आई क्या मुंह में? इमली नहीं आई लेकिन उस इमली को पचाने के लिए पानी आ गया। तो ये जो मानव में कल्पनाशीलता है, इसमें एक गुण है, कल्पनाशीलता में एक गुण है तदाकार हो जाने का। हम तदाकार हो गए, जैसे इमली आ ही गई, जैसे घंटी बज ही गई, जैसे सेब कट ही गया, जैसे सेब लाल से हरा हो ही गया। तो मानव वो अद्भुत चीज़ है कि उसमें कल्पनाशीलता है। तो मानव के पास देखिए, जो छोटा बालक है ना, उसके पास जिज्ञासा है और यदि उसको कोई गुरु मिल जाए, है ना, तो इसको आप कहिए शिष्य
है ना, और यहाँ पर रखिए गुरु को। और गुरु के पास यदि समाधान हो तो अस्तित्व जैसा है उसका यथार्थ दर्शन यदि किसी गुरु ने किया है, किसी टीचर को पता है अस्तित्व कैसा है, और यदि अस्तित्व की प्रत्येक वास्तविकता को उसके प्रयोजन के साथ ये गुरु जो है ना, गुरु के पास क्या है, समाधान, तो इसकी जिज्ञासा में जैसे ही है ना डालता है, तो जो जिज्ञासु बालक है वो कल्पनाशील है। जैसे जैसे मैं आपको दिखाती जाती हूँ आपको दिखते जाता है। आपको दिख गया कि कोयला और पेट्रोलियम का प्रयोजन क्या है। आपको अस्तित्व में हर एक वस्तु समाधान स्वरूप में दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारी कल्पनाशीलता में तदाकार होने का गुण है। एक ये गुण है, एक उसकी एक ताकत है। ये जोड़ा कैसे जाता है, तो मैंने कहा भैया ऐसे जोड़ना है कि ये 2 और तो 2, फिर 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, 1 2 3 4, फिर आपको कहा 3 और 3 जोड़ के बताओ, आपने कहा 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, आपने जोड़ के लिखा 6। ना सिर्फ उसके अंदर जो बताया गया है उससे वो तदाकार हो जाता है, उसके आगे का अनुमान लगा लेता है। हम जब बच्चे को जोड़ना सिखाते हैं तो सब कुछ जोड़ना थोड़ी सिखाते हैं, केवल जोड़ने का टेक्निक सिखाते हैं, और फिर बच्चा बड़े से बड़े नंबर आप दे दीजिए उसको, वो जोड़ लेता है। तो मतलब हमारे अंदर एक तो कल्पनाशीलता, उसमें तदाकार होने का गुण है, इसी को हम, इसमें एक और चीज़ है अनुमान क्षमता। आदमी एक कदम आगे का अनुमान लगा लेता है कि ये ऐसा ही होगा, फिर उसको आइडिया लग जाता है, हमको आइडिया लगता है। ये हमारे शरीर में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये हमारे चैतन्य पक्ष की खासियत है। तो यदि जिज्ञासा हो और गुरु से समाधान मिल जाए तो ये जो बालक है ना, इसकी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करके ये जिज्ञासा समाधान का स्वरूप ले लेगी। ये समाधानित हो गया। और यही बालक आगे चल कर के जब अभिभावक बना तो इसके पास जो बच्चा आया, पुनः समाधान जो है वो ट्रांसफ़र, और यहाँ पुनः क्या आ गया, समाधान। क्योंकि यथार्थ समाधान मतलब यथार्थ दर्शन, अस्तित्व जैसा है वैसा। पुनः इस समाधान बालक के पास आगे क्या आ गया, कोई जिज्ञासु आया तो उसने यथार्थ का ज्ञान कराया, पुनः क्या मिला हमको, समाधान। समाधानित व्यक्ति में समाधान को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो समाधान प्लस जिज्ञासा बराबर समाधान, समाधान प्लस जिज्ञासा बराबर समाधान, समाधान प्लस जिज्ञासा बराबर समाधान, प्लस समाधान प्लस जिज्ञासा बराबर समाधान। इस तरीके से समाधान जो है वो मल्टीप्लाई होता है और धरती पर चारों अवस्था संतुलित रहती हैं सदा सर्वदा के लिए। इस धरती की जो आज स्थिति है वो करने वाला कोई और नहीं है, मानव स्वयं है। हम बहुत कायर होंगे यदि हम इन सब चीज़ों को किसी और के नाम पर थोप दें कि उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी नहीं है। हम कुछ भी कहानियाँ गढ़ें, हमारी मर्जी है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। पर मैं आपको ये बता सकती हूँ, अस्तित्व में एक वस्तु बनने के बाद उसके निरंतर बने रहने की व्यवस्था है। इसलिए पानी बनने के बाद जल चक्र है, हवा बनने के बाद नाइट्रोजन का चक्र है, ऑक्सीजन का चक्र है, कार्बन का चक्र है। एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिसिटी। समाधान आने के बाद समाधान की भी चक्रीयता है। समाधान से समाधान से समाधान से समाधान, सदा सर्वदा समाधान। ये अस्तित्व का डिज़ाइन है जोरदार। अरे वाह, क्या बात है भैया, आप लोग आ गए राजकोट से। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात है। ठीक है, मुझे लगता है सत्र को यहाँ पे रोक सकते हैं। आगे, इसके आगे आपको और अस्तित्व दिखाते हैं। मज़ा आ रही है ना? बढ़िया, चलिए, धन्यवाद। चाय नाश्ता कर लें। हाँ ठीक।